Good morning, everyone. Welcome in our next session of chapter number 9, A Day at Gurukul Vidyalaya. Today we will start our new chapter, A Day at Gurukul Vidyalaya. This is play or drama. A drama can be performed on the stage by the characters. Okay, there is a story. Take out the page number 27 and look at the PAP 9.1. First of all, look at the PAP 9.1 and turn on the page number 27. Here we have an activity, work in pairs and discuss your likes and dislikes. Okay, first of all you pair up and discuss what you like and what the other one is like or dislike, and list two similarities and differences between you and your partner. Okay, देखिए here is a chart. Some similarities and the differences will be there. First of all, you discuss about the likes and dislikes. Then after discussion, you summarize that what are the similarities between you and your partner. What is the similarities? Then you have to write here the similarities and what are the differences between you and your partner. Here you have to write there. यहाँ आपको लिखना, यहाँ आपको डिफरेंसेस लिखने हैं और यहाँ आपको सिमिलैरिटीज़ लिखनी है आफ्टर द डिस्कशंस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स. क्लियर. कंपेयर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स, और जो आपके आंसर्स हैं वो और आपके जो क्लासमेट्स हैं आपको उनसे कंपेयर करना है. बट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़ बिकॉज स्कूल्स आर नॉट ओपन येट. सो यू जस्ट पेयर अप विद योर ब्रदर सिस्टर या फिर जो भी आपका फ्रेंड हो आपके पास रहता हो उसके साथ. ठीक है. Clear. Now we will start our chapter A Day at Gurukul Vidyalaya. Okay, it is let us now read a drama about a few students. All drama is about a few students who had the opportunity to meet students from a different school. Okay, this drama is about a सम स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में है जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है क्या करने की, डिफरेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने की इनको क्या मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है. द सीन इज सेट इन क्रिसलिस जूनियर एंड मिडिल स्कूल एंड वेयर द सीन सेट, द सीन सेट इज द क्रिसलिस जूनियर स्कूल एंड द मिडिल स्कूल. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd B आर इन क्लास टॉकिंग टू देयर क्लास टीचर मिस रमा. Okay, here is a class students of 3rd and they are talking with their teacher Miss Rama. She is making an interesting announcement. और वो क्या कर रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट कर रही हैं. The scene start first with Miss Rama. Now who look at the Miss Rama in loud voice. What she says? Attention children, next week we are going to visit an international school called Gurukul Vidyalaya. What she announces is, she announces that we are going to visit an international school called Gurukul Vidyalaya. Here in the green strip we can see the difficult words. International means इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज़. हमारी कंट्री के अलावा हम दूसरे कंट्रीज़ को भी उसमें इन्वॉल्वेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट को, उस इन्वॉल्वमेंट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल. ओके, तो अभी जो ट्रिप पर जाएगा इनका स्कूल विज़िट करेगा वो क्या होगा, इंटरनेशनल स्कूल्स के बीच में होगा. इट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज से जो स्कूल्स के कुछ सेलेक्टेड बच्चे आएंगे और उनका आपस में बातचीत होगी. नाउ टर्न द पेज नंबर 28. Now Sweta, what is special about the school, ma'am? What she is asking, Sweta is a student, when their teacher announces that we are going to visit an international school called Gurukul Vidyalaya. जब उसने बोला कि हम इंटरनेशनल एक स्कूल है गुरुकुल विद्यालय वहाँ विज़िट करने जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मतलब वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो हम भी वहाँ जाएंगे और वहाँ पे विज़िट करेंगे, उनसे बात करेंगे. व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द स्कूल. तो बोलिए मैम उस स्कूल में स्पेशल क्या है, उसमें क्या स्पेशल है जो हम वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं. देन मिस रमा रिप्लाई, Gurukul Vidyalaya has students from different countries such as Bangladesh,
Russia, England, USA, France, Korea, China and many more. What she says that the Gurukul is a school हैज़ स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. कहाँ से हैं? फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं. कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उसमें? बांग्लादेश है, रशिया है, इंग्लैंड है, यूएसए है, फ्रांस है, कोरिया है, चाइना है और भी बहुत सारे हैं. ओके. देन दिनेश, अनदर स्टूडेंट्स. दिनेश, डू दे स्टडी द सेम थिंग्स एज वी डू इन ए स्कूल? क्या पूछ रहा है कि वो इंटरनेशनल स्कूल है, डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या वो सेम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो हम स्टडी करते हैं या फिर उसमें कुछ अलग होता है? मिस रमा, यस दे स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस. यस, वो ये सब पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, साइंस. एंड देयर आर सम डिफरेंसेस दो, ये उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. इन दिस स्कूल द चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न देयर नेशनल लैंग्वेजेस. वहाँ के बच्चे हैं उनकी जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं सच इज़ फ्रेंच, कोरियन, स्पेनिश, उसको भी लर्न करते हैं. एंड अनदर डिफरेंस इज़ दैट दे ऑल्सो रिसाइड इन द स्कूल. और दूसरा डिफरेंस क्या है कि वो लोग दे लिव इन द स्कूल. रिसाइड मीन्स लीव, टू लीव इन द स्कूल. बच्चे स्कूल में ही रहते हैं. स्टूडेंट, ओ या अगर हम अपने मम्मी पापा से दूर रहेंगे तो कितना सैड होता है. तो कह रहा है ओह. मिस रमा, so are you all excited about visiting this school? The ma'am cautioned to the students that are you all excited about visiting the school? Then the student says yes ma'am. जब हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो हम सब एक्साइटेड होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे जो बच्चे हैं सब वो क्या है, एक्साइटेड हो रहे हैं कि यस. Now scene second, start the scene first is completed. Now the scene second is the next week at गुरुकुल विद्यालय. वो नेक्स्ट वीक कहाँ जाने वाले थे? गुरुकुल विद्यालय. अब जो नेक्स्ट सीन है वो कहाँ का है? गुरुकुल विद्यालय का. इट मीन्स आफ्टर द वीक. नाउ मिस स्मिथ, अब मिस स्मिथ हैं. मिस स्मिथ इट मीन्स गुरुकुल विद्यालय के जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं वेलकम चिल्ड्रन, आई एम हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू इन आवर स्कूल. वी वॉन्ट आवर स्टूडेंट्स टू मीट यू. दे वुड लव टू नो मोर अबाउट यू. शी सेज कि आई एम हैप्पी, मैं आप सभी को यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ. वी वॉन्ट आवर स्टूडेंट्स टू मीट यू, हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट आप लोगों से मिलें. एंड दे वुड लव टू नो, और वो जानकर खुश हूँ कि आपके बारे में मोर अबाउट यू मीन्स दैट नॉट द पर्सनल, द अबाउट द कंट्रीज़. वो आपकी कंट्री के बारे में जाने और जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. मिस रमा, वी आर हैप्पी टू विज़िट योर स्कूल टू, हम भी बहुत खुश हैं आपके स्कूल्स को विज़िट करके. माई स्टूडेंट्स वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़. हमारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जानना चाहते हैं और अदर कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं उनके बारे में. मिस स्मिथ, ग्रेट, वी मे ऑल बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ बट वी शेयर वन थिंग इन कॉमन. We all have special celebrations and festivals in our countries. Should we begin with some information about the festival in different countries? What she says, उसने कहा कि हम सभी लोग, we may all be from different countries, हम सभी different countries से होंगे, but we share one thing in common, लेकिन हम सब एक चीज़ कॉमन शेयर करते हैं. वो क्या है? we all have special celebration, हमारे स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं इन आर कंट्रीज़ के. तो हम क्यों ना उसी इन्फॉर्मेशन से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें. कहाँ से स्टार्ट करें? फेस्टिवल. इट मीन्स कौन सी कंट्रीज़ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. वी विल स्टार्ट विद दिस topic. So should we begin with some information about the festivals in different countries? Now turn the page number 29. Okay, now the topic start with festivals. The Robin is the students वो say sure Miss Smith, ज़रूर हम इससे स्टार्ट करेंगे. मिस स्मिथ, कैन समवन नेम द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विच इज सेलिब्रेट अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर? व्हाट ही से कि कोई बच्चा बता सकता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन सा फेस्टिवल होता है
नेम द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विच इज़ सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर, हर साल इंडिया में सेलिब्रेट होता है. देन अनीशा टेल, इट इज़ दिवाली. मिसेज रमा, यस, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड. Miss Rama answers that yes, Diwali it is Diwali and it is celebrated by Hindus. जो हिंदू रिलीजन होता है उसमें सेलिब्रेट की जाती है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. एंड इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इसमें लाइट्स जलाए जाते हैं, क्रैकर्स जलाए जाते हैं. ओके, नाउ देन जेनिफर सेज वी सेलिब्रेट थैंक्सगिविंग इन अमेरिका. इट इज़ अ थैंक्सगिविंग डे इन अमेरिका सेलिब्रेटेड. इट इज़ इसमें वो थैंक करते हैं, किनको थैंक करते हैं? थैंक्स टू सेक्रीफाइसेस एंड हार्ड वर्क फॉर द हार्वेस्टर्स. ओके, तो इसमें थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन होता है जो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? अमेरिका में. क्लियर? नाउ देन द मैथिली सेज फॉर पीपल इन तमिलनाडु पोंगल इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल. वो क्या कहती है? मैथिली इज़ फ्रॉम तमिलनाडु से कि जो तमिलनाडु है उसमें कौन सा फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है? द पोंगल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल. देन सईद कहता है वी सेलिब्रेट ईद उल फित्र एंड बकरा ईद इन सऊदी अरबिया. एंड ईद उल फित्र एंड द बकरा ईद इज़ सेलिब्रेटेड मोस्टली इन सऊदी अरबिया. नॉट ओनली सऊदी अरबिया बट ऑल द around the world. The Muslims festival is this Eid ul-Fitr and Bakra Eid. Now Arthur says in Scotland, अब now he is from the Scotland, so he says कि Hog Manay is the biggest festival. And what is the Hog Manay? Hog Manay is celebrated as a New Year. New Year है 31st को ही मनाया जाता है ये, और एज ए न्यू ईयर फेस्टिवल है, इसको न्यू ईयर एज ए न्यू ईयर मनाया जाता है. देन मिस स्मिथ, आई होप यू हैव लर्न समथिंग अबाउट द वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड. व्हाट वुड यू ऑल लाइक टू डू नेक्स्ट? क्या बोल रहे हो? मिस स्मिथ ने कहा कि आई होप यू हैव लर्न समथिंग अबाउट द वेरियस फेस्टिवल. आप लोग सभी वेरियस फेस्टिवल्स के बारे में जान चुके होंगे. जो वेरियस कंट्रीज से स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सभी ने अपने फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कशन किया. नाउ शी इज़ आस्किंग दैट कि व्हाट वुड यू ऑल लाइक टू डू नेक्स्ट. अब आप आफ्टर द डिस्कशन ऑफ फेस्टिवल व्हाट वुड यू डू, आप क्या करना चाहेंगे? देन द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन इन कोरस इन ए ग्रुप, ही शेयर्स दे से प्ले. हम प्ले करना चाहेंगे. प्ले इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे नेवर वांट टू मिस. नाउ इट इज़ द सीन सेकंड इज़ completed here. Here we learn that कि some students, a few students are going to visit an international school called गुरुकुल विद्यालय. वो विद्यालय पहुंच जाते हैं, गुरुकुल विद्यालय पहुंच जाते हैं. वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं. और किस बात से डिस्कशन करते हैं? वो अबाउट दे स्टार्ट देयर डिस्कशन विद द फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं. उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं? वो प्ले करना चाहते हैं. और प्ले में क्या करना चाहते हैं वो? नाउ लुक इट इन सीन थर्ड. द सीन थर्ड, नेक्स्ट डे बैक इन स्कूल. नेक्स्ट डे क्या होता है? वो सब लोग क्या हो गए, उनकी विज़िट ख़त्म हो गई, उन्होंने प्ले कर लिया. अब वो सब कहाँ जा रहे हैं? वो सब जा रहे हैं अपने अपने स्कूल पहुँच गए हैं. अब नेक्स्ट डे बैक इन स्कूल, स्कूल के दिन का टाइम है, स्कूल के दिन का प्ले है ये. अब उसमें बता रहे हैं, स्टार्ट विद मिस रमा. मिस रमा आस्क्ड द स्टूडेंट डिड यू एंजॉय योर विजिट टू गुरुकुल विद्यालय. व्हाट शी आस्क्ड दैट कि डिड यू एंजॉय, क्या आपको अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया गुरुकुल विद्यालय में? देन दिनेश रिप्लाई, आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया. आई लव इट. द स्टूडेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अस. स्टूडेंट जो थे वो डिफरेंट थे. वाई दे वर डिफरेंट? बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज बट ऑल्सो अलाइक इन सम वेज. लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ उनमें थी, वो हमारे ही तरह थे. देन श्वेता सेज दे डिड नॉट वेयर यूनिफॉर्म्स. उन लोगों ने यूनिफॉर्म्स नहीं पहनी थी, वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं. अनिशा, देयर फूड वॉज डिफरेंट फ्रॉम आर्स. उनके जो फूड्स होते हैं, उनका जो खाना होता है वो हमारे खाने से डिफरेंट होता है. वी फाउंड
दिस when we shared our food with them, ये मैंने तब पाया जब मैं उनके साथ अपना फूड शेयर कर रही थी. our Japanese friend at sushi जापनीज़ जो फ्रेंड है वो क्या उसने क्या खाया सुशी विच इज़ राइस विद रॉ फिश. और सुशी क्या है, कौन सी डिश है, वो राइस खा रही थी विद रॉ फिश से वो राइस खा रही थी. देन जेनिफर सेज अमेरिकन गर्ल एट ए सैलड विद मैश्ड पटेटोज़. और जो अमेरिकन गर्ल थी जेनिफर वो क्या ईट कर रही थी, सैलड खा रही थी. किसके साथ खा रही थी, पटेटोज़ से वो मैश हुए हुए थे. दे लाइक द फूड वी ब्रॉट टू, और दे लाइक द फूड, उन्होंने वो फूड भी पसंद किया जो हम अपने साथ लेकर गए थे. वो फूड उन्होंने बहुत पसंद किया, उनको बहुत अच्छा लगा. तो इन दिस पैराग्राफ हमने क्या देखा, इन द सीन थर्ड स्टार्ट विद द नेक्स्ट डे. जब वो अपने स्कूल वापस आ गए हैं, बैक इन द स्कूल द नेक्स्ट डे, उनका विजिट जो है वो ख़त्म हो गया है, एंड अप हो गया है. नाउ द स्टार्ट विद द मिस रमा आस्क देम डिड यू एंजॉय योर विजिट टू गुरुकुल विद्यालय. देन दिनेश सेज आई लव इट. द स्टूडेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अस, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के वो डिफरेंट थे, बट ऑल्सो लाइक इन सम वे, बट द सम सिमिलैरिटीज़ आर देयर. And what is the differences is that they did not wear the uniform and their food was different with us. Some students like Japanese students were at the Japanese friends जो थे वो ऐड कर रहे थे sushi which is the rice and raw fish, and the Jennifer is at a salad with the mashed potatoes. And जो अदर कंट्रीज़ के जो दूसरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑल्सो लाइक द फूड वी ब्रॉट टू, जो वो लेकर गए थे वो भी फूड उनको क्या हुआ, पसंद आया. ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 30. नाउ 30 पेज नंबर, turn on the page number 30. Here you see the picture of the students where the students were eating. Sweta, they loved my chapati and potato curry. Sweta says that कि उन्होंने मैं जो अपना लंच लेके गई थी उनको बहुत पसंद आया, और वो क्या लेके गई थी, चपाती एंड पटेटो कड़ी. भारत, आर्थर इंजॉयड माई इडलीज. आर्थर जो कि स्कॉटलैंड से था उसको बहुत पसंद आया. क्या पसंद आया, ही लव्ड माई इडलीज एंड ही फाउंड द चटनी स्पाइसी टफ. मिस रमा, yes, some people in the western world are not used to spicy food like ours. उसने क्या कहा, मिसेस रमा ने कहा कि जो वेस्टर्न पीपल होते हैं उन लोगों का जो फूड होता है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, वो ज़्यादा स्पाइसी फूड को यूज़ नहीं करते हैं, और उनका हमारा फूड जो होता है उनकी कंपेरिजन में स्पाइसी होता है. Then Miss Rama, can you tell me one thing you found in common with the students? Then the ma'am asked them कि क्या आप मुझे बता सकते हो कोई एक ऐसी कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वन थिंग यू फाउंड इन कॉमन जो आप में सिमिलर थी उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ. श्वेता, वी ऑल लव टू प्ले. व्हाट इज़ द सिमिलर दैट, कि सभी बच्चों को क्या पसंद होता है, ऑल लव टू प्ले. अनीशा, एंड सो डू दे, एंड दे आर मिस्चीवियस टू लाइक अस. और वो मिस्चीवियस थे, मिस्चीवियस यानी नॉटी. ऑल स्टूडेंट्स आर नॉटी. सभी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, नॉटी होते हैं. स्टूडेंट्स मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, सब कैसे होते हैं, नॉटी होते हैं, बिकॉज दे आर बिलोंग टू द थर्ड क्लास. थर्ड क्लास इज़ वेरी स्मॉल एंड यू आर ऑल्सो इन थर्ड क्लास. और आप लोग भी कैसे हैं, बहुत नॉटी हैं. और यू ऑल लव टू प्ले. एंड एवरीवन लाफ्स, और सभी हंसने लगते हैं. किस बात पे हंसने लगते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम, कि ऑल लव टू प्ले एंड दे आर मिस्चीवियस टू लाइक अस. सो ऑल आर लाफिंग. नाउ मिस रमा, वंडरफुल, आई एम हैप्पी दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड सो मच. वंडरफुल, वेरी सरप्राइजिंग, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट कि यू ऑल ऑब्जर्व्ड वेरी मच. We all come from different countries and have different experiences, and yet we are also similar to each other in so many ways. क्या बोला, हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती ही हैं. वी हैव सो मैनी सिमिलैरिटीज़. तो यह चैप्टर इज़ completed
and tomorrow we will do our question answers, and you will read it again carefully, the chapters meaning by meaning, and read the drama clearly. If you have any problem in any meaning in pronunciation, you will ask me. आप मुझसे पूछ सकते हैं. You can ask me if you have any problem. I will solve this. And first of all, you will revise the chapter. You will read it again. If you have any problem, you will ask me. In the next class, we will do our question answers. Till then, take care and read the chapter